एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ध्यान से देखना, मैं कमाता हूं लेट अस अज्यूम 50,000 रुपीज पर मंथ, मनराज कमाता है 60,000 पर मंथ। एग्जाम्पल, एम आई पुअर 50,000 रुपीज पर मंथ? एग्जाम्पल, नो, 50,000 पुअर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। 50,000 में यू कैन अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बेसिक नेसेसिटीज। बट since Manraj is earning more than me, I will be considered relatively poor as compared to Manraj. तो relatively मतलब in comparison to the other person, और जब हम countries को compare कर रहे हैं तो in comparison to the other country। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, क्या वहां पॉवर्टी ज्यादा होती होगी? नो सर, उतनी नहीं जितनी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में। तो वहां पे वो ये नहीं ढूंढते हैं अच्छा कौन है जो बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे, वहां देखते रिलेटिवली पुअर कौन है। कह रहे पुअर तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं है, कुछ कंट्रीज हैं पुअर तो कोई भी नहीं है, बट रिलेटिवली पुअर है बिकॉज देयर आर पीपल हु आर अर्निंग मोर देन देम। हम अभी उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं, हमारे पास एक्चुअल पुअर ही बहुत सारे। तो एक्चुअल पुअर मतलब इफ आई एम अर्निंग 50,000 पर मंथ, आई एम नॉट एक्चुअली पुअर, बट यस आई एम रिलेटिवली पुअर in comparison to the people who are earning more than me. So relative poverty is in comparison to some other person or a country. Absolute poverty वो actual quantity quantify किया जाता है, अच्छा आपकी इनकम इतने से कम है, you are not able to afford the basic necessities of life, then you are considered as poor। होती है absolute poverty। तो बहुत important है different measures of poverty, relative poverty and absolute poverty। relative poverty क्या है? relative poverty, it refers to poverty of people in comparison to other people, other regions or other nations। so in comparison to, example, if Ram has lower income in comparison to Sham, then we can say that Ram is relatively poor as compared to Sham। Importance, it helps in understanding the relative position of different segments। Limitation, it only reflects the relative position of different segments of the population in the income hierarchy। It does not consider how poor the poor person is or whether he is deprived of the basic minimum requirements of life or not। relative poverty ये स्टडी नहीं कर पाता क्योंकि वो इनकम तो क्वांटिफाई करेंगे नहीं, ही इज रिलेटिवली पुअर देन द अदर पर्सन, ही इज रिलेटिवली पुअर, बट वी कैन नॉट कंक्लूड वेदर ही इज एबल टू अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और नॉट। क्योंकि पुअर बाय डेफिनेशन पुअर कौन है? who cannot buy or purchase or consume the basic necessities of life, who cannot afford the basic necessities of life, food, shelter, clothing, education and health। so relative poverty। on the other hand, absolute poverty क्या है? it refers to the total number of people living below the poverty line। तो absolute poverty, people living below the poverty line। तो अगर कंट्री को ये पता चलेगा अच्छा हाउ मेनी पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो फिर गवर्नमेंट के लिए स्टेप्स लेना इजी हो जाएगा कि वो हो जाएगी हमारी प्रायोरिटी कि दीज मेनी पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, पहले इनकी हेल्प करो, फिर कोई और स्टेप लेना ग्रोथ के लिए। सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए। Absolute poverty refers to total number of people living below the poverty line। Example, according to absolute measure, around 22% of India's population is below the poverty line। तो absolute आपको quantify कर रहा है कि population अगर वैसे तो 140 करोड़ है, example 100 करोड़ है, तो 22% people are below the poverty line, तो 22 crore people, they cannot afford the basic necessities of life। The government should take the necessary steps to help them। Importance, the concept of absolute poverty is relevant for less developed countries like India। तो हमारे लिए
ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट क्या होगा, relative poverty या absolute poverty? Absolute poverty. Where there is abundance of poverty, it helps to measure the number of poor people. अब poverty line, for example income 4,000 per month, example income 4,000 per month, 5,000 per month, 5,000 से कम जिसकी है वो below the poverty line है, 5,000 से ऊपर जिनकी है वो above the poverty line है. एग्जाम्पल लिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की इनकम 4,000, अगर पॉवर्टी लाइन 5,000 पे सेट करी है हमने, तो अगर किसी की इनकम 4,900 है तो वो भी बिलो द पॉवर्टी लाइन है. किसी की इनकम 3,000 है वो भी बिलो द पॉवर्टी लाइन है, और किसी की इनकम अगर 0 है वो भी बिलो द पॉवर्टी लाइन है. तो गवर्नमेंट बस ये क्लासिफाई कर रही है कि पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन कितने हैं, अबव द पॉवर्टी लाइन बाकी हो गए. तो लेकिन बिलो द पॉवर्टी लाइन भी इतने सारे हैं कि पहले उन पे फोकस जाना चाहिए जो वेरी पुअर है. कह रहे इट डज नॉट क्लासिफाई बिटवीन वेरी पुअर और लेस पुअर, वो बस बताता है कि पुअर बिलो द पॉवर्टी लाइन, नॉन पुअर अबव द पॉवर्टी लाइन. बिलो द पॉवर्टी लाइन में फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं हो रही कि वेरी पुअर कौन है, लेस पुअर कौन है, किसको ज्यादा जरूरत है गवर्नमेंट की. तो वो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन और एब्सोल्यूट पॉवर्टी की. The method of poverty line used to measure absolute poverty does not differentiate between the very poor and the other poor. Moreover, it does not consider social factors that generate and are responsible for poverty. कह रहे उसने तो सिर्फ एक ही चीज कंसिडर करी, आपकी इनकम लेवल या आपके अफोर्डेबिलिटी खाने पीने की. It does not take into consideration, there are so many other factors which are not taken into consideration, like illiteracy, ill health, lack of access to resources, discrimination, or lack of civil and political freedoms. कह रहे ये सब तो कंसिडर ही नहीं कर रहे. इलिटरेट है, कह रहे नहीं उससे पॉवर्टी का कोई लेना देना नहीं. अरे कह रहे वो तो रूट कॉज है, पढ़ाई कर रखी होती, जॉब कर पाते, कुछ काम कर पाते. इल हेल्थ है, बीमार है बेचारा, काम ही नहीं कर पाएगा. कह रहे ऑल दीज फैक्टर्स शुड आल्सो बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. कह रहे नहीं, पॉवर्टी लाइन आपकी इनकम इससे नीचे है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, इसके ऊपर है अबव द पॉवर्टी लाइन, बाकी और कुछ हम कंसिडर करेंगे ही नहीं. How to measure absolute poverty? In India, poverty line is used as a standard to measure the number of poor people. In poverty line, a standard is fixed in terms of minimum level of consumption. Absolute poverty refers to a situation when a person fails to reach this minimum consumption level. एक कंजम्पशन लेवल डिसाइड हो जाएगा कि अच्छा अगर इतना आप कंज्यूम कर पा रहे हो तो आप पुअर नहीं हो, नहीं कर पा रहे then you will be categorized as poor. So in context of India, proportion of people living below the poverty line gives the absolute measure of poverty. In this chapter, we will take poverty in the sense of absolute poverty. तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा किस कंटेक्स्ट पे पढ़ने वाले हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में, ना कि रिलेटिव पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में. तो पॉवर्टी लाइन हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैलकुलेट करने में हेल्प करती है. व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी? इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है. डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट